السلام علیکم دوستو۔ سائر جنات نگری کے دو جنوں سائر اور کاراکا کی پر اسرار کہانی۔ ایک خیر کا پرتو تھا اور دوسرا شر کا مجسمہ۔ دوستو، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ اچانک کمرے کا دروازہ دھڑ کی آواز کے ساتھ کھلا اور ایک لمبے قد اور سیاہ جسامت کا قبائلی اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر داڑھی مونچھیں نہیں تھی، سیاہ چہرے پر آنکھوں کے سفید ڈورے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے صرف جانگیا پہنا ہوا تھا، پیروں میں چمڑے کے جوتے، جبکہ دائیں ہاتھ میں ایک برچھی تھی۔ میں حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کون تھا وہ اور ہم سے کیا چاہتا تھا؟ یہ سوالات میرے ذہن میں گونجے۔ میں نے آنے والے سیاہ قبائلی سے پوچھ ہی لیا۔ میری بات سن کر پہلے وہ زیر لب مسکرایا اور پھر اس کا چہرہ چٹان کی طرح سخت ہو گیا۔ میں سیاہ گو ہوں۔ سیاہ گو؟ کون سیاہ گو؟ میں چونکا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، میں سردار مٹوشا کا نائب ہوں۔ سردار مٹوشا کا نائب؟ میں نے دہرایا، اور اگلے ہی لمحے مجھے ساری بات سمجھ آ گئی۔ یقیناً سیاہ گو بھی سفلی طاقتوں کا ماہر تھا جس نے ہمیں جادوئی دھویں کی مدد سے بے ہوش کر دیا تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ چلتا ہوا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور غسیلی نظروں سے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت شفاقی سے بولا، تمہاری جان۔ تم نے سردار مٹوشا کو ہلاک کر کے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ میں کل سے ہی تمہاری تلاش میں تھا اور بالآخر میں نے تمہیں جنگل میں پا ہی لیا۔ اور پھر اس نے سورامی کی طرف دیکھا، اور یہ سورامی، اسے تو میں ایسی سزا دوں گا کہ یہ مرتے دم تک یاد رکھے گی۔ میں اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر دوں گا۔ اس نے میرے سردار کو دھوکہ دے کر اچھا نہیں کیا۔ اچھا، اگر تم میری جان لے سکتے ہو تو لے کر دکھاؤ، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، اور شاید میری بات سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تبھی اس نے ایک جھٹکے سے میری گردن دبوچ لی اور دانتوں کو کچکچاتے ہوئے بولا، میں تمہیں آسان موت نہیں ماروں گا۔ تو کون سی موت مارو گے؟ میں نے پوچھا۔ اس کی گرفت کا مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ میری گردن دبوچنے سے میرا سانس گھٹنے لگے گا اور میں اس سے رحم کی بھیک مانگوں گا۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ کتے کی موت۔ ٹھیک ہے، بہت جلد یہ معلوم ہو جائے گا کہ کتے کی موت کون مرتا ہے، تم یا میں۔ تم مرو گے، تم، اور میرے ہی ہاتھوں مرو گے، اس نے حلق کے بل چیخ کر کہا، اور ساتھ ہی اس نے میری گردن پر دباؤ بڑھایا۔ لیکن اس کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ میں نے اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات دیکھے۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری گردن دبا رہا ہوں اور تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوشش کرتے رہو۔ میں نے اسے مزید تیش دلا دیا۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو پھر تیار ہو جاؤ، میں تمہاری گردن اڑانے لگا ہوں، وہ تیش بھرے لہجے میں بولا۔ ایسا بھی کر کے دیکھ لو۔ اس نے میری گردن ایک جھٹکے سے چھوڑ دی اور پیچھے ہٹتے ہی اس نے برچھی کسی تلوار کی طرح گھمانی شروع کر دی۔ وہ انتہائی پھرتی اور مہارت کے ساتھ برچھی گھما رہا تھا اور اس کے چہرے پر
सफाकियत छाई हुई थी और आंखों में वहशत, लेकिन मैं इंतहाई इत्मीनान के साथ खड़ा था। मुझे उसके इस तर्ज अमल पर जरा भी डर और खौफ नहीं था। मैं जानता था। स्याह गो चंद लम्हे बर्छी को तेजी से घुमाता रहा और फिर उसने आगे बढ़कर बर्छी मेरी गर्दन पर मार दी। यकीनन उसका ख्याल होगा कि बर्छी की धार से मेरी गर्दन कट कर दूर जा गिरेगी, लेकिन उसका ख्याल ख्याल ही रहा था। और जैसे ही बर्छी मेरी गर्दन पर लगी तो मुझे हल्का सा झटका लगा, लेकिन ना ही मेरी गर्दन कट कर दूर जा गिरी और ना ही मेरी गर्दन पर कोई खराश आई थी। अगर मेरी जगह कोई इंसान होता तो जिस अंदाज में स्याह गो ने बर्छी मारी थी, उससे उसकी गर्दन कट कर यकीनन दूर जा गिरती। मुझे सही सलामत देखकर स्याह गो ना सिर्फ हैरत से उछल पड़ा, बल्कि आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखने लगा, यहाँ तक कि वो पलकें झपकना भी भूल गया था। और जब वो बोला तो अल्फाज उसके हलक से टूट टूट कर बरामद हो रहे थे। क्या मतलब? तुम्हारी गर्दन क्यों नहीं उड़ी? मैंने तंजिया लहजे में ज़ैर लब मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम्हारी बर्छी तेज नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने बेइख्तियार नजरें फेर कर बर्छी की तरफ देखा। मैंने कहा, जाओ, जाकर पहले इसकी धार को तेज करो और फिर इसे मेरी गर्दन पर मारना, शायद अगली बार मेरी गर्दन कट जाए। मेरी बात सुनकर वो भन्ना गया और आलम तैश में उसने एक बार फिर मेरी गर्दन पर बर्छी मार दी। लेकिन हुआ वही जो पहले हुआ था। बर्छी मेरी गर्दन उड़ाने में नाकाम रही। अब तो स्याह गो की हालत देखने के लायक थी। वो हैरत, खौफ और परेशानी के मिले जुले तासुरात से कभी बर्छी को देखता और कभी मुझे। मेरी बर्छी तुम पर असर क्यों नहीं कर रही, बता दो, वो ठटका। क्या? मैं हंसा। यही कि बर्छी मेरी गर्दन पर क्यों असर नहीं कर रही। हाँ, बताओ। मेरी बात पर यकीन कर लोगे? कर लूँगा। तो फिर सुनो। मैंने कहा, मैं जिन्नज़ाद हूँ और दुनिया का कोई हथियार मुझ पर असर नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर वो उछल ही पड़ा और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। क्या तुम जिन्नज़ाद हो? वो बोला तो उसका लहजा गैर यकीनी था। मैं ज़ैर लब मुस्कुरा दिया। हाँ, मैंने असबात में सर हिलाया। लेकिन तुमने सरदार मटोशा को क्यों मारा? उसने पूछा। उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। तो फिर तुमने उसे क्यों मारा? अगर मैं उसे ना मारता तो वो इंसानियत के लिए ख़तरा बन जाता, मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। सरदार मटोशा एक जालिम, सफाक, बदकिरदार और शैतान का पैरोकार शख्स था। उसकी वजह से दीगर कबाइल में रहने वाले लोग बेहद परेशान रहते थे, ख़ास कर नौजवान लड़कियां, जिनकी इज्जतों से खेलना उसका मशगला था। कोई उसके जुल्म सितम से महफूज ना था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई सरदार मटोशा को सफाक, जालिम और बदकिरदार कहने की? स्याह को भड़क उठा और उसकी आंखों से शोले निकलने लगे। तुम भी यकीनन शैतान के पैरोकार हो, मैंने किसी डर और खौफ के बगैर कहा। हाँ, मैं भी शैतान का पैरोकार हूँ, वो एतराफ़ी लहजे में बोला। शैतान मेरा आका है। तो फिर तुम भी मेरे हाथों मरोगे, मैंने गोया एलानिया लहजे में कहा।
बहुत ही भयानक मौत। जिस तरह तुम मेरे हाथों नहीं मर सकते, इसी तरह मैं भी तुम्हारे हाथों नहीं मर सकता, उसने बड़े वसोख से कहा, क्योंकि मेरे आका शैतान ने मुझे बेपनाह शैतानी ताकतें अता की हुई हैं। तुम्हारे पास जितनी मर्जी शैतानी ताकतें हों, लेकिन तुम रूहानी ताकतों के, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम खुद देखोगे कि तुम कैसे मरते हो। अच्छा, तो फिर मुझे मार कर दिखाओ, वो चैलेंज वाले लहजे में बोला। तो मैंने अस्वाद में सर हिला दिया। साथ ही मैंने अपने हाथ को हरकत देते हुए उंगली में पहनी अंगूठी जंजीर के साथ लगा दी, और अगले ही लम्हे जंजीर एक झमाके से गायब हो गई। मैंने यही अमल दूसरी कलाई में बंधी जंजीर के साथ किया तो वो भी गायब हो गई। अब मैं आज़ाद था और स्याह को उसकी हालत दीदनी थी। उसकी तो ये हालत थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। वो गैर यकीनी नज़रों से मुझे देख रहा था। तभी उसने जल्दी से कुछ पढ़कर खुद पर फूंक मारी तो उसके अकब में 2 सांप ज़ाहिर हो गए। सांप बहुत बड़े और मुख्तलिफ रंगों के थे। उन्होंने ज़ाहिर होते ही ज़ोर से फुंकार मारी और मेरी तरफ लपके, लेकिन मैंने तेज़ी से झुकाई दी और साथ ही मैं एक तरफ हो गया। मेरे झुकाई देते ही सांप मेरे ऊपर से गुजरते चले गए। गो वो सांप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन मैं चाहता था कि स्याह को अपने सांपों की कारकर्दगी देख ले। सांप एक बार फिर जोर से फुंकारते हुए मेरी तरफ मुड़े, लेकिन मैंने जल्दी से खुद को गैबी हालत में कर लिया था। मेरे गायब होते ही सांप यूं रुक गए जैसे स्याह ने जादू की मदद से उन्हें रोक दिया हो। ओहो, ये कहाँ गायब हो गया? स्याह को खौफ भरे लहजे में बड़बड़ाया। साथ ही उसने आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाईं। मैं तुम्हारे पास ही खड़ा हूं स्याह को, मैंने कहा, और अब अपने सांपों का हश्र देख। इसके साथ ही मैंने अपनी अंगूठी का रुख सांपों की तरफ किया तो पलक झपकने से पहले अंगूठी से सुर्ख रंग की रोशनी सी निकली, जो सांपों के करीब पहुंचते ही भड़क कर आग की शक्ल इख्तियार कर गई। दूसरे ही लम्हे आग ने दोनों सांपों को अपनी लपेट में ले लिया। जैसे ही सांप आग की लपेट में आए तो उनके मुंह से करीह अमीज चीखें निकलीं और वो पलक झपकने से पहले ही गायब हो गए। स्याह को सुन सा खड़ा अपने सांपों को जलता और गायब होता देखता रहा, और फिर जब वो होश में आया तो उस वक़्त तक मैं भी ज़ाहिर हो चुका था। मैंने ज़ाहिर होते ही स्याह को की गर्दन पकड़ ली। स्याह को ना सिर्फ चौंका बल्कि उसने मेरी गिरफ्त से अपनी गर्दन छुड़ाने की तगो-दो की। मेरे हाथों की गिरफ्त बेहद सख्त थी। साथ ही मैंने एक झटके से उसे उठाकर फिजा में बुलंद कर दिया, जिसकी वजह से स्याह को के हलक से खरखराहटें निकलने लगीं और वो हाथ पैर मारने लगा। मम उसके हलक से अल्फाज टूट टूट कर निकल रहे थे, लेकिन उससे बोला नहीं जा रहा था। मुझे उस पर ज़रा भी रहम न आया, क्योंकि वो शैतान का पैरोकार था। उस पर रहम करना गोया खुद पर जुल्म करने के मतरादिफ था। अब बोल, तुझे मेरे हाथों से कौन बचा सकेगा? मैंने भुनाए हुए लहजे में पूछा। मुझे वो कहते कहते कराहा, क्योंकि मैंने अपने हाथ की गिरफ्त मज़ीद सख्त कर दी। वो यूं फड़फड़ाया जैसे कोई परिंदा फड़फड़ाता है। अपने आका को बुला जो तुझे मेरी गिरफ्त से आज़ाद कराए, मैंने चैलेंज करते हुए कहा।
दूसरे ही लम्हे मैंने उसे कमर के बल फर्श पर पटक दिया। उसके हलक से दिल दोज चीख निकली और वो मुर्गे बिस्मिल की तरह फड़कने लगा। तुझे किस बात का इंतजार है? बुला अपने शैतान आका को, मैंने फुंकारते हुए कहा। तू वो कुछ कहने ही लगा था, लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी करते हुए उसके पेट पर पैर रख दिया। दूसरे ही लम्हे स्याको के हलक से दर्दनाक चीख निकली और वो काफी हद तक उठकर बैठा, लेकिन फिर एक झटके से फर्श पर जा गिरा। अब कोई फायदा नहीं है स्याको, मैंने अपनी बात जारी रखी, क्योंकि तुम्हारा मेरे कहर से अब तुम नहीं बच पाएगा। अब मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहने के बाद मैंने अपने पैर पर वजन डाला तो स्याको के हलक से खौफनाक चीख निकली और वो बुरी तरह तड़पने लगा। मैं उस वक़्त तक उसके पेट पर पैर रखे खड़ा रहा जब तक उसके जिस्म से उसकी जान ना निकल गई, और उसके मरते ही मैंने उसके पेट से पैर हटा लिया। स्याको की आंखें खुली हुई थी, जिनमें बेपनाह खौफ और अजियत के तासुरात जैसे मंजमद होकर रह गए थे। आंखें खुली हुई थी लेकिन बेनूर। खस कम जहां पाक, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर मैं सोरामी की तरफ मतवजा हुआ। वो अभी तक बेहोश थी। मैंने सबसे पहले उसे जंजीरों से आज़ादी दिलाई। उसे फर्श पर लिटाने के बाद मैंने अंगूठी की मदद से उसे भी होश दिलाया। होश में आते ही वो तेजी से उठ बैठी और गैर शनासी सी मुझे देखने लगी, और जब वो मुकम्मल तौर पर होश में आई तो वह सरसराती हुई बोली, मैं कहाँ हूँ? स्याको की कैद में, मैंने जवाबन कहा, तो वो मतवश होकर इधर उधर देखने लगी। स्याको की कैद में वो गैर यकीनी सी बोली, कौन स्याको? क्या तुम स्याको नहीं जानती? मैंने हैरत भरे लहजे में दरियाफ्त किया। स्याको सरदार मटोशा का नायब था और सोरामी नहीं जानती थी। हैरत की बात थी। नहीं, उसने नफी में सर हिलाया तो मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों के तासुरात से मालूम हो गया कि वो वाकई स्याको के बारे में नहीं जानती। स्याको सरदार मटोशा का नायब था, मैंने जवाबन तवील सांस लेते हुए कहा। उसने सरदार मटोशा की मौत का बदला लेने के लिए हम दोनों को अगवा करके अपने ठिकाने पर कैद कर दिया था। क्या मतलब? वो चौंकते हुए बोली। और मैंने उसके वजूद से इस धरती को पाक कर दिया है।